सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, सर्वर हंस कैसे बना? सर्वर हंस देखो मेरे पेरेंट्स से बना मेरे लिए बड़ी वड्डी गल है यार। आफ्टर हैविंग पीपल लाइक हिम्मत आनंद, मनीष दुआ, अपना गौरव खनीलवाल, तो मैं यार हुण मैनू भी कदों बुलाएगी डिंपल यार। तीनों मेरे खास दोस्त आके चले गए तो, एंड आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग पंजाबी। वो गल की ना, आई कीप माई रूट्स विद मी ऑल टुगेदर। तो वाइट हंस के पीछे एक्चुअली कौन कौन है? बैकबोन इस टाइम वाइट हाउस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਨਵਦੀਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਰਹੀ ਗੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ। सही गल है। ब्लैक तो माल चलदा नहीं। ਉਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਬਲੈਕ ਥੋੜੀ ਦੇਗਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਮਿਥ ਕਿ ਹੰਸ ਪੀਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੂਵੀ ਵਾਲਾ। There is no godfather for us। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ? थोड़ा सा संभल के काम करो। ट्रैवल ट्रेड इज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड। पीपल लाइक मी हु वांट टू कम विद द पार्ट ऑफ ट्रैवल ट्रेड, बट बिकॉज सच पीपल, हमें भी कई बार प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में क्रेडिट के लिए। नहीं यार पता है डिंपल गल की है, मेरे डैड ना मैंने गल कहते सी, नज़र ना पत्थर फाड़ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਲੁਕਾਈ ਜੱਗ ਕੋਲ ਪਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁੜ ਖਾਈਏ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਲਤ ਮੋਹੇ ਐਸੀ ਲਾਗੀ ਹੋਗੀ ਮੈਂ मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को के मैं जाऊं वारी वारी। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਅੱਜ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦ ਮੁਸਾਫਿਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੈ ਦਾ ਸਰਵਰ ਹੰਸ। ਕੋਈ ਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਸਰਵਰੈਂਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰ ਸੈਲਫ ਓਬਸੈਸਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਓਬਸੈਸਡ ਹੈ ਨਾ ਸਰਵਰ ਹੰਸ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਮੁਸਾਫਿਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਿੰਪਲ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। मेरे लिए बड़ी वड्डी गल है यार। आफ्टर हैविंग पीपल लाइक हिम्मत आनंद, मनीष दुआ, अपना गौरव खनीलवाल, तो मैं यार हुण मैनू भी कदों बुलाएगी डिंपल यार। तीनों मेरे खास दोस्त आके चले गए तो मैं चलो when you asked me last time, but unfortunately I couldn't come because of my personal issues and all। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਰੱਖ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਯਾ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਵਿਦ ਮੀ। So this why I'm sitting over here in front of you people. That's great and thank you so much for on time। Yes, I was on time। And basically ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਓਬਸੈਸਡ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਓਬਸੈਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਓਬਸੈਸਡ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਲਫ ਓਬਸੈਸਡ ਆ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਡਿੰਪਲ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਫੀਲ ਆਰਸੈਲਫ ਲਾਈਕ ਅ ਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਆਲ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਦੇ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਦੈਟਸ ਅ ਰੁਤਬਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਰੀ ਅ ਰੁਤਬਾ ਐਂਡ ਆਲ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੈਲਫ ਅਬਸੈਸਡ, ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰ ਸੈਲਫ ਅਬਸੈਸਡ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਸਿਟੀ। Publicity, good publicity or a bad publicity is always a good publicity. Correct. What I feel. So let's start the podcast and सर्वर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, सर्वर हंस कैसे बना? सर्वर हंस देखो मेरे पेरेंट्स से बना। नहीं, but jokes apart, सर्वर हंस come from a very middle class family. Okay, if I talk about my पिछोकड़, ते father साहब पंजाब तो, and I'm sorry I'm talking Punjabi। वो गल की ना, I keep my roots with me all together। तो मेरा कहते USP कह लो, इतने मैं सॉरी मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनावांगा। आया जनरली मैंने कई लोगों ने पूछा सर्वर यार तू पंजाब से है? मैं कहा नो यार, आई एम फ्रॉम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, और स्टडी मुंबई तो की है, IHM मुंबई तो। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ हैं क्योंकि एक बार ना जैजी भाई ਦਾ शो देख रही सी, तो उन्होंने बड़ी सोहनी गल की सी उत्थे। ही सेड कि आज की डेट में ना इंग्लिश हर कुत्ता बिल्ला बोल लेता है।
राइट। पर जो आपकी माँ बोली है ना, वो वही बोल सकते हैं जिसका पीछे रूट स्ट्रॉन्ग है। True. एंड पर्सन शुड ऑलवेज फील प्राउड ऑफ देयर पंजाबी लैंग्वेज और लाइक मदर टंग। एब्सोल्युटली। ते इस करके उस दिन इतने बना लिए जी कि वैन एवर आई गेट अ चांस टू टॉक इन पंजाबी, सो आई विल डेफिनेटली टॉक इन पंजाबी। और ना मेरा ज़मीर नहीं, मैं जा जाता मैं किसी और लैंग्वेज गल करें जो सामने पंजाबी बैठा हुए, ट्रू दैट। तो बाय डिफॉल्ट ही निकलेगा। नो यू हैव टू कॉप अप विद दिस। सो सरवर हैंस फादर साहब द बैकग्राउंड पंजाब, सो ही केम फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली। जो दिल्ली आ गए तो शादी दिल्ली होगी। एंड फादर वाज अ सिंगर, तो थोड़ी वो म्यूजिक लाइन से भी और गुरबाणी बड़े थे, तो सरवर हंस नाम रखने का था। गुरबाणी में लाइन है सरवर में है आपे हंस। तो गुरु साहब दा वचन सी कि धरती इज लाइक अ सरोवर एंड हंस जो उच्च का पंछी होता है, वी हैव टू बी लाइक अ हंस। तो लकीली और दोनों ना वो कोलैबोरेट हो गए वर्ड्स, करेक्ट। तो दिस और सर्वरेंस बना। फिर सर्वरेंस आगे स्टडी दिल्ली में करी, दिल्ली के बाद मुंबई चला गया अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए, एचएम मुंबई। लकीली रैंक आ गई थी, सो बस वहाँ से फिर सर्वरेंस चल रहा है आगे। सो यू स्टार्टेड विद होटल लाइन, राइट? हाँ जी। तो होटल्स में आपको मतलब आईएचएम करने के बाद लोग बहुत सारी चीजों में जाते हैं, तो हाँ। आपने स्पेसिफिकली सेल्स पार्ट क्यों चुना इसमें? ये बड़ी अच्छी क्वेश्चन पूछा तूने डिम्पल। सो जब होटल इंडस्ट्री जाने का एक मकसद कैसे था, छोटे छोटे होते थे तो डैड सिंगर थे, तो ताज में जब 18th एनुअल डे हुआ तो डैड मुझे अपने साथ लेके छोटा जैसे चलो यार देखो, और जो मैंने होटल की लॉबी देखी मैं कहा वाह, मैं पागल हो गया, गश खा गया। मैं कहा यार दिस इज समथिंग आई शुड डू। तो ऐसे चलते चलते बड़े हो गए, तो 12th तक कुछ पता नहीं था करना क्या। मैं कहा होटल लाइन देखी थी, तो होटल लाइन में थोड़ा कुछ ट्राई करते हैं। सो करियर लॉन्चर गए, वहाँ पे एंट्रेंस की तैयारी करी। उन्होंने बोला होटल मैनेजमेंट अगर करना है तो इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज एचएम मुंबई है, बाकी गए लोकल दिल्ली और जगह से मत करना, फिर वही होता है जब आप छोटी पोस्ट पे लगोगे, लोला की रैंक क्रैक होगी। तो कॉलेज में गए, तो कॉलेज में जाते ही मैंने देखा कि यार यहाँ पर तो बिल्कुल हिसाब गलत है। यहाँ पे तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे आपको साइंस भी पढ़ाई जाएगी। पर चलो सेकंड ईयर में एक टाइम आता है जहाँ पे एवरी स्टूडेंट हैज़ टू गो फॉर 6 मंथ इंटर्नशिप। अब मेरा हो गया जुमेरा सिलेक्शन। अब जुमेरा सिलेक्शन हो गया और आई वॉज वेरी एक्साइटेड। वो सारा खर्चा तब ये था कि जो बंदा दुबई पहुंच गया उनको बहुत पैसे मिलते हैं वहाँ पे। तो मेरा भी, पर मेरा क्या था, मेरा 1991 में मेरा हैंड रिटन पासपोर्ट था। अब सर्वर की स्पेलिंग SCRVER है और SARWR हैंड राइटिंग में, रनिंग हैंड राइटिंग में लिख दिया। और तो जब फिर पापा को बोला पापा मेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर है, नया बनवा, तो पुराना ही पासपोर्ट चला गया और वही नाम छप के आ गया। और जो नाम छप के आया तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। 2 अक्टूबर से मेरी ट्रेनिंग थी एंड 30 सितंबर तो मैनू रिजेक्शन आ गया। सो देन माई डैड वॉज लाइक वेरी मच नोन इन टू दी होटल इंडस्ट्री ऑल्सो। देन ही कॉल्ड टू मल्टीपल होटल्स, दे सेड कि सॉरी वी हैव नो filled with the all internships and all. तो मैं कहना कि then father साहब their friend see Mr. Vijay Handa, he's so kind and I feel he's my second father, who get me into this industry. Then he said कि मेरे पुत्र ने तो lemon tree भेजो, he was a regional general manager for lemon tree at that time. So I got this EDM hall, the EDM hall ਦੇ ਵਿੱਚ मैं देखा, but there was nothing to learn because that was a very small boutique hotel, so they were not having a bar. तो मैं कहा यार मेरे वाले तो सारे बाहर कॉकटेल बनाना सीख के आए होंगे और मैं तो यहाँ पे बैठ के CVS सीख रहा हूँ कि वाइपिंग कैसे करनी है। सो लकीली उनके नीचे मॉल था, मॉल के अंदर देखा कि उन्होंने एक लड़का खड़ा करते थे, तो उन्होंने कहा चल सर्वर तू भी जाके नीचे खड़ा हो जाए और नीचे से कस्टमर्स को ऊपर होटल दिखाने के लिए आना है। मैं पहले दिन गया, मैं 2 कस्टमर लेके आ गया। हिमांशु देव वहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ थे, उन्होंने कहा तो लड़का बड़ा काम का है, तो उन्होंने मुझे टारगेट दिया नेक्स्ट डे अब तू 2 और लेके आ। तो मैंने ऐसे करते करते ना 2 के 4, 4 के 6 करने शुरू कर दिए। तो मैंने देखा छोटा बच्चा, क्या आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक 2009, तो मैंने देखा यार सेल्स वाले गाड़ी में जाते हैं, सेल्स वाले गाड़ी से आते हैं। मैं कहा ये है जो एट दैट टाइम आई यूज्ड टू वेयर टर्बन, तो मैंने कहा ये है काम जो मेरी पर्सनैलिटी को भी जचता है और मुझे लगता है मैं कर भी लूँगा। तो फिर वो एयरपोर्ट सेल्स सीखा, फिर मैं कुछ महीने फिर सेल्स में रहा। सो दैट मेड मी वन थिंग कि अब तूने जो भी करना है तो सेल्स में करना है। फिर मेरे को कॉलेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, फ्रंट ऑफिस, और बॉयज वर लुकिंग सिक गाय, गुड़गांव वाले आए थे, तो आई सेड नो आई विल ओनली गो फॉर सेल्स। तो फिर आई स्टार्टेड माई करियर। मेरे मैं दिल्ली वापस आ गया तो जॉब तो कुछ थी नहीं। फिर रेडिसन ग्रीन जो आपका NH8 पे प्रॉपर्टी है वहाँ से स्टार्ट की, विच वॉज CIS कंटिनेंट स्वीट्स। फिर करते 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 फिर उसके बाद 3 साल पेपरमिंट रहे, फिर मल्टीपल चेंजेस रहे, फिर होटेलियर बना इसलिए था क्योंकि रुतबा भी था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की रुतबे एटीट्यूड वाली, कि व्हेन आई गो विद द क्लास, व्हेन आई मूव लाइक प्राउड गाय दैट आई रिप्रेजेंट समथिंग। तो बस वो फील लेके मैं मूव करता गया। सो देन ब्लूम्स भी आया, ब्लूम रूम्स भी ज्वाइन किया,
प्लाजियो भी था, then अमृतारा, which was a turning point and a game changer for my whole career. Exactly. And touchwood, that was a blessing for me, which turned my whole, say, career also, who gave me a पहचान in the travel trade, I would say. क्योंकि ऑफबीट लोकेशंस पे होटल थे एंड ट्रैवल ट्रेड किया। पहले हम कॉर्पोरेट में थे, ट्रैवल ट्रेड का पता ही नहीं था। So what I'm blessed and always thanks to the Almighty that they gave me an opportunity to work with Amritara. फिर बस चलते Then Amritara, look, from being from hotel, तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक बिल्कुल चेंज था, बिकॉज वाइट हंस जो आपने अभी लॉन्च किया, हाँ जी वाइट हंस इट्स अ ट्रैवल कंपनी। सो आपके माइंड में क्यों आया ऐसा कि आपको होटल छोड़ के ट्रैवल लाइन में जाना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है डिम्पल। कईयों को पता है बात की अमृतारा में कर रहा था, तो लकीली एक मुझे था कि अब लाइफ में कुछ नया करना है, तो नया करने में अमृतारा ठीक ही चल रहा था। उस दौरान फिर कुछ कनाडा जाने का मेरा डिसीजन हुआ कि कनाडा जाएंगे। वो 2 महीने में रह भी गया, फॉर सम पर्सनल रीजन सिस्टर का कुछ हैंड टूट गया था, तो मैंने कहा यार यहाँ तो सब कुछ है, वहाँ कुछ भी नहीं होगा, मेड्स का इशू है। तो फिर जनरली आई वाज जस्ट कॉलिंग टू माय नोन पीपल, सो दिस हाउ आई कॉल्ड केडी पाजी from Tire Bulls. Once again a very gem person of the industry, I would say. मैं क्या पाजी में इदा है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਟਲੀਅਰ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। सो ही सेड कम टू माय ऑफिस टुमारो। तो मैं ऑफिस गया, डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा तू सेल्स में आ जा। सेल्स ज्वाइन किया, 6 months आई वर्कड ओवर देयर फॉर 6 months। वो बहुत बढ़िया था। मैंने DMC वर्ड जो डीपली वहाँ देखा, and he's a big shot of the Thailand market, so I have learned the skills of the DMC also over there। ट्रैवल ट्रेड को और नज़दीक से देख लिया। तो चलते जी फिर एक टाइम ऐसा है, मेरे कॉर्पोरेट क्लाइंट का मुझे फ़ोन आ गया। उसने कहा यार मेरे 20 लोग यूरोप भेजना है। तो मैंने कहा कर दूंगा मैं, बिकॉज सो यू आर डूइंग अदर कंट्रीज फाइल ऑल्सो। सो आई स्पोक टू केडी भाई ने कहा तू फाइल उठा ले। तो मैंने फाइल उठा ली, तो उन्होंने बोला सर मुझे सारा करना है। तो आई कॉल्ड वन ऑफ द DMC, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ ओवर हियर। तो दे सेड कि हम ना सिर्फ लैंड पार्ट करते हैं। मैंने कॉर्पोरेट को जो बोला, मैं कहा हम लैंड पार्ट करा देंगे एक से, दूसरे से आपको टिकट्स करा देंगे। कहता नहीं है, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए सब कुछ कर दे। मैंने कहा ये वाला एक जो पार्ट है ना मिसिंग है। और व्हाई नॉट इफ आई कम अप विद द कंपनी लाइक वेयर आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग। सो वो दिन था, देन आई डिसाइडेड, फिर देन आई क्विट ट्रैवल बुल्स। देन फिर उस पर 3 महीने का वर्कआउट किया एंड फिर कंपनी आपके सामने ही आज। सो वी डूइंग एवरीथिंग एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। नहीं यार, थैंक यू सो मच। सो सर्वर, आपने ये व्हाइट हंस लॉन्च कर ही दिया है, तो व्हाइट हंस के पीछे एक्चुअली कौन है? इसमें इन्वेस्टर्स हैं, इसके बीच में कोई पार्टनर्स हैं, कैसे आपने ये स्टार्ट किया? इन्वेस्टर्स वाइज तो sitting over here, or partner में yes there is another partner by the name of Navdeep Kaur, who is a very old personality from the travel trade। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਬੈਕਬੋਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਈਟ ਹਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ, ਨਵਦੀਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅਦਰ ਸਟਾਫ who look after their particular roles। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਟੀਮ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ ਦੇਖਦਾ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਫਰੰਟ ਸਾਡਾ ਨਵਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਰਹੀ ਗੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ। सही गल है, ब्लैक तो माल चलदा नहीं उत्ते वाला क्या ब्लैक थोड़ी देगा। नहीं एक्चुअली ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹੰਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਤਿੰਨੇ ਬਟ ਜੋਕਸ ਅਬਾਊਟ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਮਮ ਡੈਡ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹੈਂਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ। ਡੈਡ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਟੁਕ ਦਿਸ ਨੇਮ ਫॉर ਮਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਈਟ ਹੈਂਸ ਟਰੈਵਲ। और मॉम डैड ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ into 100,000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉੱਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਹੰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਅ ਪਾਰਟੀ ਬॉय, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ? ਯੂ ਆਰ ਅ ਕੋਰ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਬॉय ਔਰ ਐਲਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ये डिम्पल सी, मैं जो व्हाट आई फील कि पार्टी बॉय तभी बन सकते हो जब आपको पार्टी करनी आती है। ट्रू। वरना तो हर कोई जना खड़ा पार्टियां करने बैठ जाए। एंड इट्स अ मिथ कि हंस पींदा बहुत है। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। हंस दिखाता बहुत है। ਨਹੀਂ ਹੰਸ ਪੀਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੰਸ, ਬਟ ਇਟਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੂਵੀ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਮਿਥ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਮੇਨਟੇਨ, ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਆਈ ਬੈਗਸ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਜਸਟ ਵੈਨ ਆਈ ਡੂ ਪਾਰਟੀ, ਆਈ ਮੇਕ ਪਾਰਟੀ ਮਾਹੌਲ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਓਨਲੀ।
you know, where people should know he is a party animal. और वो होना भी किसी किसी में चीज होती है, और जब है तो फिर उसको यूज करो. करेक्ट. वो एक ऑरा जनरेट कर देना जब आप पार्टी में बैठे हो, जब आप 4 बंदे बैठे हो और अगर ये क्या कहते हैं मजा आ गया. सो आई फील दैट्स अ पार्टी. मुझे वो पार्टी समझ ही नहीं आती जहाँ पे लोग बोलते नहीं है, और जहाँ पार्टी में बोलते नहीं है वो सबसे खतरनाक पार्टी होती है. ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਗਏ ਆ. ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੋ ਸੂਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ. ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਦੈਟਸ ਅ ਪਾਰਟੀ. ਚੁਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ. ਹਾਂ, ਸੋ ਆਈ ਜਨਰਲੀ ਡੋਂਟ ਗੋ देयर ਐਂਡ ਆਈ ਐਂਟਰਟੇਨ ਸਚ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਆਲ. ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦਾ ਆਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅੱਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਮਿਥ ਬੇਸਿਕਲੀ. ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਪੀਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਦ ਪੀਂਦਾ ਬੜੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੰਸ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੰਸਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੰਸਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਗੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚ ਕਰਤੀ ਫੋਟੋ ਡਿਸਕਲੋਜ਼, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ. ਯਾਰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੱਥਰ ਫਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ. ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਡੱਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲੁਕਾਈ ਜੱਗ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁੜ ਖਾਈਏ ਜੀ. ਤੇ मतलब मैं थोड़ा व्यूअर्स को बता दूं कि अपना ही भी चाहे गुड़ खा रहे हैं ना, वारिस शाह कहते हैं उसको छुपा के खाओ. सही बात. क्योंकि नजर लगते टाइम नहीं लगती, और मुझे बहुत लगी है. और फिर इस करके थोड़ा संभल के चल रहे हैं, इस बारी लुका के चल रहे हैं. नहीं बहुत बढ़िया. बस बड़ी जल्दी न्यूज आ जाएगी तेनू भी. ਸਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਈਵਨ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਫਿਗਰ. ਮੈਂ ਤੇ ਐ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤੀ. ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਪੱਥਰ ਫਾੜਿਆ. ਲਿਟਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਹੈ. ਤੇ ਡੱਕ ਲੱਗ ਲੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਔਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ. ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਦਾ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਵਰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਚਲਾਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ. ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ. ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ 4 ਇਅਰਸ ਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕੱਚ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫੇਸ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਲੀਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖਤਾ. ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ. ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੋਰਨਰ ਫਰੈਂਡ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ. ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਇਟ. ਵਾਈ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ. ਡਿਡ ਯੂ ਸੀ ਡਾਇਮੰਡ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਡਿਡ ਯੂ ਸੀ ਡਾਇਮੰਡ ਵਿਦਆਊਟ ਕੱਟਸ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਟਾਈਮ ਡਿੰਪਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਹੁਣ ਰੱਖਣਾ ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਕੱਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ. ਸਹੀ, ਚਲੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪੇ ਲਾਵਾਂ, ਦੇयर इज नो ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਫॉर ਅਸ. ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ? डिम्पल वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. ओके, मैं कहूँ ना कि how to put my the opinion, I would say इंडस्ट्री ने खराब भी हमने करी है, चलानी भी हमने ही है. सही गल है. सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस कंपनी डिम्पल, मेरे को तो ना किसी बिजनेस को नहीं करना था, और मुझे नहीं पता था कि हिडन चोर भी बैठे हैं, बहुत बैठे. मैं नाम नहीं लूंगा. सो ट्रस्ट बनाया गया पहले. तो ट्रस्ट बनाते बनाते हमने इतना क्रेडिट कर दिया कि जब हमने उसको मांगना शुरू किया और हमने मार्केट से पूछा, तो हम हैरान हो गए कि सबने बोला कि यार तू इसके चक्कर में कैसे फंस गया यार, तू इसके चक्कर में. मैं क्या, आई वॉज अ न्यू कमर, और मैं ना तो कर नहीं सकता, एंड आई वॉज अ लास्ट मूवर, सो आई हैव टू बी अ फास्ट मूवर, यू नो. सो बिकॉज मैं ना मार्केट से बहुत कुछ सीखता हूँ. सो जियो अगर रातों रात आके एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन को पीछे कर सकता है, तो एनीबडी कैन डू दैट. फंडिंग चाहिए, वो बैठा ऊपर वाला. सो दिस हाउ आई स्टार्टेड, एंड वो बंदा मुझे फंसाता गया. पहले 2 लाख की बुकिंग की तो उसमें पैसे दे दिए, 10 लाख की, फिर उसने इतना झटका देना शुरू कर दिया उसने लिटरली. तो मुझे बुरा पता क्या लगा, मैंने कहा यार अगर हम ट्रैवल ट्रेड वाले ये ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देना, तो कोई दूसरा विक्टिम नहीं बनेगा. ब्लैकलिस्ट वाला तो कोई काम है ही ना साडे इथे. But I want to take this thing from your platform that यार रोकना तो चाहिए.
हम नहीं रोकेंगे तो कोई और विक्टिम बनेगा। मुझे पता है आज 1.5 साल हो गए मेरी कंपनी को, मैं 1 साल से पेनी से पैसे ले रहा हूँ उससे, और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार वाई अस, बिकॉज हम नए थे। और उन कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से ना बड़ी बड़ी कंपनीज क्रेडिट नहीं देती। मैं नाम नहीं लूंगा बड़ी कंपनीज के, दे फील कि ये भी वैसे ही होगा, नया आया तो ऐसे ही होगा, बट दे डोंट चेक द बैकग्राउंड। बट उनकी भी गलती नहीं, जब पैसा गिरता है तो मेरे से ज़्यादा अच्छा कौन जानता है। 1 साल हो गए उस बंदे के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, और आई थिंक वी शुड टेक अ स्टैंड नाउ यार। एक्चुअली जितने हमारे एसोसिएशंस हैं यहाँ, देयर आर लॉट ऑफ टूरिज्म बॉडीज इनसाइड। यार सॉरी, मैं तो एसोसिएशंस को कहूँगा दे आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। नो आई विल नॉट, आई एम सॉरी, आई एम अ वेरी स्मॉल गाय, बट डिम्पल ये ना सीरियस मैटर है। हम फिर किस्सों में बात करते हैं, यार तू फंसे, उसने उसके साथ ऐसा किया था, उसने, तूने कैसे फंस गया। अब मैं उसका नाम लूंगा तो इंसल्ट मेरी भी है। सही गल है कि तू इसके चक्कर में फंस गया। तो ये चीज़ ना हमें ऐसा होना चाहिए कि, और मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ वी विल नेवर वर्क विद सच पीपल एंड विल मेक श्योर कि हम ये नेम बताएं मार्केट को, और मैं भी बताऊंगा। बिकॉज जो मेंटल हरासमेंट हुई है टीम को, हुई है फंडिंग है, माई पेरेंट्स मनी एंड ऑल, एज ए सेड उन्हीं का पैसा है, कोई खराब में तो आता नहीं, हार्ड एंड मनी है। मैंने कुछ ऐसे एजेंट देखे हैं जिन्होंने पैसा देखा नहीं होता, 10 लाख रुपए इकट्ठा देके लेके भाग गए, क्योंकि मेरे किस्से का मैंने कई स्टोरी सुनी। तो वी हैव टू बी स्केप्टिकल, एटलीस्ट आप क्रेडिट दो तो सोच के दो। और जैसे जो गलती मैंने करी वो कोई ना करे। ये सबसे बड़ा हर्डल आया मेरी लाइफ में कि व्हेन आई लॉस्ट दैट मच अमाउंट ऑफ मनी एंड इट टुक मी 1 ईयर। डिम्पल मजाक तो हट के गल है, 1 साल से उन्होंने रुआ था। पैसे की तो बर्बादी हुई, रकम टूट गई, बट आई वुड से हाउ सच पीपल कैन डू यार। मतलब एक्चुअली ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ईमान नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ। ਬਟ ਜੋਕਸ ਅਪਾਰਟ, अगेन आई वुड से कि फ्रॉम दिस फोरम आई वुड से प्लीज, मैं तो लूंगा नाम, आप लोग भी उस नाम के साथ रखना। वी शुड ब्लैक दिस सो दैट दे शुड नॉट कैरी फॉरवर्ड सच प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं से हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो फाइनली लाइफ ने आपको क्या सिखाया? यही सिखाया कि थोड़ा सा संभल के काम करो। Travel trade is a very beautiful trade. I say, being a hotelier, I have seen this from very close, mode and all, and I'm very glad to be a part of travel trade, and we are doing good business. And just want to say, with such people you have to be. And जब किया हो तो आप खुल के नाम लो, but यहाँ पे नहीं लूंगा, कुछ ज्यादा ही ज्यादा हो जाएगा। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਡਿੰਪਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨੇੜਿਓਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈ ਡੈਡ ਐਂਡ ਲੇਡੀ ਵਾਸ ਟੁਗੇਦਰ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਬਾਈਪੋਲਰ ਮੇਨੀਆ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। एंड ही वॉज अ वेरी बिग सिंगर दैट टाइम। जेपी सार्थ ने फूड फेस्टिवल चलती थी, बस फिर वो एक डर जा नहीं हो रहा कि नहीं यार सिंगिंग ते करनी सीखिया जद कि मैं, ठीक है, बट दैट डर इज इन माई हार्ट राइट नाउ कि यार दोबारा नहीं थे। ते बड़ी नेड़ो देख ली यार जो जिंदगी सिंगिंग वाली भी, सिंगर्स भी अज भी सिंगर्स फ्रेंड है, ठीक है ना। ते शौक नहीं है, बस शौकीਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਕਦੀ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, होगी मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को के मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, हो तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, और तेरी जान में सदके के कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओहो जी हाँ जी होगी मैं तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी। मैं तो क्या सी गला चौंकता पूरा, कोई गल सो टुटे 2 जगह मेरे, माफ कर दियो। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਪੰਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਰ, ਵਾਈ ਡੋंट ਯੂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਪੀਪਲ यूज्ड टू से मी सर तू लगता नहीं रूम बेचता
why don't you try into the singing line and all. मैं कहा मैंने बहुत कुछ देख लिया और शौक ही नहीं है, शौक ही नहीं है। उठना बैठना भी साथ है, हाँ। रहना भी साथ है, तो इतनी पास में देखने के बाद नहीं। सही है। फादर ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, म्यूजिक भी सिखाने की कोशिश में जीतू कापा अंकल के पास लेके, जो मिलिंद कापा के डैडी हैं। मैं वहां से भाग के आ गया म्यूजिक सीखने के, शादी शिगिर्दी चलती थी तब, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ छोड़ के आता हूँ, यहाँ से म्यूजिक सीख, बट ही ट्राइड बट आई कुडंट, बिकॉज जुनून कुछ और था। एज ए सेड कि बाइपोलर मेनिया फादर को जब हुआ तो मैंने गरीबी घर पे बहुत नजदीक से देखी, मतलब अगर मॉम ना होते तो आज मैं यहाँ ना होता। सही बात। तो रिस्पेक्ट टू माय पेरेंट्स एंड ऑल, बोथ डिड देयर वर्क so much for me, so that's why I'm sitting over here। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਾ ਮਨ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਦਿਆ ਯਾਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਟਰੈਵਲ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਵਿਚ ਵਨ ਵਾਸ ਬੈਟਰ? Yes, see, if we talk about current scenario of my company, we're doing both. Okay. Corporate ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੇਅਰਡ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਟਰਸਟ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕੀ। बट देयर आर, ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे हैं, सो बट देयर आर वेरी गुड पीपल ऑल्सो। साढ़े चावला साहब है, रजी चावला साहब, सही गल है ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट जेम ऑफ द B2B आई वुड से सेक्टर। बड़े सारे नाम ने, क्लासिक सौरभ जोशी हो जाए, ठीक है ना, दोषी सॉरी, और बड़े सारे प्लेयर है ने, बट जिन्होंने संजो के रखी इंडस्ट्री, बट कुछ लोग का करके ना फिर मैंने वो लगता है कि यार नहीं है, मेरा कॉर्पोरेट ठीक है। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 2015-16 ये बैग हो गया ना, 10 साल हो गए। ਤੇ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸ਼ਿਫਟਡ ਟੂ ਮੀਡੀਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਐਸਐਸਸੀ ਫੇਰੋ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਡਲ। then I shifted to डिफॉल्टर है नहीं यार। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ you know we should be loud vocal at that time, and I told to many people to not to do work with that chap, you know, he this is his regular practice। ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, but that's something wrong, you know, being a travel partner, you know, we should make a group where we should put the name blacklist, you know, आप केस स्टडी डालो, blacklist करो ताकि और कोई ना करे, और मना कर दो इससे काम ना करे। At least it should be a learning lesson for other people यार, people like me who want to come with the part of travel trade, but because such people, हमें भी कई बार प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में क्रेडिट के लिए। नहीं यार, मतलब मेरा एक बड़ा क्लोज फ्रेंड, बड़ा ही क्लोज है, अफ्रीका करते हैं वो, नाम क्या लेना, उसने मुझे क्रेडिट, जबकि हम बैठे उठते साथ में, और वो डरा भी इसलिए था कि हांस की 35 लाख की फाइल थी, तो उसने कहा मैं अपने मामे को भी नहीं क्रेडिट देता, ही जस्ट वांटेड टू कवर कि सर मैं तेरे को क्यों नहीं दे रहा, पर मेरे को तब अब समझ आया कि उसने मुझे क्यों नहीं दिया। business is business। दोस्त भी दोस्त का नहीं है, अगर इतना डरे हुए हैं लोग अंदर से कि दोस्त भी दोस्त के नहीं है, वो उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द, यू नो, द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। तो आई मार्केट में है, एंड आई थिंक इट्स गुड, उनके लिए वो डर ठीक है, क्योंकि शायद नहीं, मेरे को भी डर है, हाँ, हमने भी नहीं दिया, एंड इवन 100 में से एक बंदा हमें ऐसा मिलता ही मिलता है, पर मैं भी गलत कर रहा हूँ ना। कोई सही में जेन्युइन बंदा होगा जिसको चाहिए, और उसको हम नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक करप्ट इंसान की वजह से वही वो ये ना पुराने है ना, नया कोई भी नहीं है, नया यहाँ तो बिल्कुल ही आपको मिलेगा Tier 3 में, ठीक है ना, वो वहाँ कर रहे हैं। यहाँ जो Tier 1 सिटी में बैठे हैं उनको हमने बैठने कैसे दिया है वो हमारी भी गलती कर ही नहीं पा रहे ना लोग, पता नहीं कैसे चल रहा है। एंड सर्वर, इतना आपने अभी तक स्ट्रगल भी किया, आपने सारे तरीके के लाइफस्टाइल देखे हैं, आपने घूमा ही बहुत है, तो एट लास्ट आपका फेवरेट डेस्टिनेशन बीइंग फ्रॉम ट्रैवल इंडस्ट्री, आपका पर्सनल फेवरेट क्या है डेस्टिनेशन? इंडिया से बाहर कुछ भी। एम्स्टर्डम, ग्रेट चॉइस। मतलब यू नो व्हेन आई बीन टू एम्स्टर्डम, लोगों की एक वो दूसरी मेंटालिटी होती है, बट ऑनेस्टली इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट, ब्यूटीफुल, सीनिक ब्यूटी। मैं कहूँगा अगर कल को मैं रिटायर हुआ एंड इफ आई वांट टू सेटल डाउन विद माय फैमिली समवेयर, दैट्स एम्स्टर्डम।
कंट्री साइड बहुत प्यारा है वैसे उसका। अरे मैं कह रहा हूँ जब मैं वहाँ पहुंचा ना, यू नो वो एक जो माइंड सेट है ना, वो फिर वही बात आती है, जितना बात सोचने की होगी बंदा उतना ही सोचेगा, बट इफ यू गो आउट ऑफ दैट ब्यूटी ना, और वो आपकी सोच से, तो आपको एक नया नीदरलैंड पूरा दिखेगा। मैं बताऊंगा, इट्स अमेजिंग। क्लीन रोड्स, ब्रॉड रोड्स, लग्जरी कार्स, ब्यूटीफुल हाउसेस, छोटे छोटे हाउसेस हैं। मैं पेरिस गया, मैं आपका ये अपना जर्मनी गया, आपका कोलान गया, मतलब मेरे को ना एम्स्टर्डम से बढ़िया कुछ लगा ही नहीं। मुझे सब नॉटनेस लगा बाकी जगहों पे, शांत, वेरी ब्यूटीफुल। मेरे को जितनी का मौका मिलेगा ना, मतलब आई लव टू गो देयर। ग्रेट। तो एम्स्टर्डम वैसे भी मुझे लगता है कि वन ऑफ द ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल, तो उसका अलग ही है। देखो ब्यूटी है, अगर आप उसको ब्यूटी की तरफ से देखोगे, अगर आप वो दूसरा वाला सोचोगे ड्रग्स भी है वहाँ पे, सब कुछ। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया ड्रग्स के लिए वहाँ पे, हम्म, यू नो इट्स अप टू यू, ठीक है। और booking.com का उस टाइम पे इवेंट था वहाँ पे, एंड मैं कहूँगा मैंने एम्स्टर्डम को दूसरी नजर से देखा। जो लोगों की नजर है उससे 10 गुना बढ़िया है एम्स्टर्डम। हंसने वाली बात है बट ये सच है। ये सच है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल आई वुड से प्लेस। एनीथिंग यू वांट टू से टू द न्यू कमर्स? यार जिद होनी बहुत जरूरी है आज की डेट में। न्यू कमर्स तो आज की डेट में जिद तो है ही नहीं। न्यू कमर्स में थोड़ा पेशेंस लेवल भी जीरो हो चुका है, ठीक है ना। अगर आपने कुछ कह दिया तो चलो दूसरी नौकरी है। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई लेफ्ट कंटिनेंटल स्वीट्स, तो मेरे को दूसरी अपॉर्चुनिटी पेपरमिंट से मिली थी। तो उन्होंने जो मेरे सीनियर थे उनसे मैंने पूछा, शुड आई मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन दिस काइंड ऑफ इन दिस पीरियड ऑफ स्पैन। तो उन्होंने बोला, सर्वर देख तू चेंज तो कर रहा है, पर एक ठहराव लेके आना कम से कम 3-4 साल का। सो आई वर्कड इन पेपरमिंट फॉर 3 years, और उसके अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। न्यू कमर्स के लिए सिर्फ ये जिद और पेशेंस, स्टिक टू वन कंपनी एट लीस्ट फॉर 2 years। यार ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज की हमारी इंडस्ट्री में, स्टाफिंग नहीं है। वो भी इसलिए क्योंकि हम भी बगैर बैकग्राउंड चेक के उठा लेते हैं, चलो ये उठा लो हमें चाहिए। इसमें कहते हैं ना उस जो कैंडिडेट को ही होता है कि चल यार ऐसे ही मिल गया, सीधा 100 मिल जाएंगी। सही बात है। तो न्यू कमर्स के लिए कहूंगा, अगर फ्यूचर जाना है, अभी तो देखो छोटी सैलरी आपको बहुत अच्छी लगती है, बड़ी का सपना देखने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड विद वन कंपनी। एग्जैक्टली। एंड इवन मुझे लगता है कॉर्पोरेट, हमारी ट्रेड में तो नहीं पता, बट कॉर्पोरेट मार्केट में अब बैकग्राउंड चेक के मेल्स आने लगे हैं हर चीज। हाँ मैंने भी देखा रिसेंटली। रिसेंटली मेरे पास मेरे कुछ एक्स कलीग्स के लिए मेरे पास भी आया, मेरे को था एक अकाउंटेंट था, यू नो ही लेफ्ट ऑन अ वेरी गुड नोट, बट मेरे को अभी हैरानी थी, कॉर्पोरेट कॉल्ड अस टू चेक अ रेफरल प्रॉपर्ली। इवन आई गॉट मेल ट्वाइस की अच्छी बात है। तो ट्रैवल ट्रेड में भी होना चाहिए, ट्रैवल ट्रेड में भी होना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है ना कि आज ये स्टाफ यहाँ पे, कल वो कहाँ बैठा है पता ही नहीं। एंड इवन कुछ तो हमारे आसपास वाले पे ही होते हैं। आसपास वाले भी होते हैं, पार्ट ऑफ द गेम है, वो तो चलती रहनी है। बट हाँ एज यू आस्क्ड, जिद होनी बहुत जरूरी है। कुछ भी जिद होगी तो कुछ ना कुछ तो अचीव होगा ही होगा। सही बात है, क्योंकि आजकल वो शोशा के अलावा मुझे लगता है कि सिर्फ दिखावे पे ही रह गया है सब, ऑलमोस्ट दिखावे पे रह गया है। ऑलमोस्ट है दिखावे। तो जिद बहुत जरूरी है। एंड आपका अभी तक जो होटल का एक्सपीरियंस है, आपको बेटर क्या लग रहा है? होटल ज्यादा अच्छा लग रहा था या अभी ट्रैवल एजेंट बन के ज्यादा? दोनों काम तो दोनों तरफ है। स्टिल ओनली बीइंग फ्रॉम होटेलियर, और देखो होटल लाइफ वाज मोर ग्लैमरस, ठीक है ना। ट्रैवल में नाउ यू ना बैक सीट, आई एम डूइंग द सेम वर्क but not on the front seat right now. I'm sitting on a back seat where you know I'm guiding. वहाँ पे मैं फ्रंट सीट बैठ के दिखाता था एज अ टूर गाइड की होटल ही है। तो एज आई सेड, होटल इज अ ग्लैमरस जॉब, ट्रैवल ट्रेड इज आल्सो ग्लैमरस, बट बैक पिछली सीट पे बैठ के ग्लैमरस तो आपके लिए अभी भी है ना, इतनी पार्टीज हमारी हैं। वो तो मैंने बोला, वो मेंटेन कर रखा है लाइफ स्टाइल। सी डिम्पल, हर बंदा ने हर इच्छा के साथ जीता है। मुझे कि जब मैं मरूं ना तो मेरे माइंड में ये ना रह जाए यार ये करने था ना तो आज समा कुछ और होता। सही गल। एंड यू नेवर नो योर लास्ट डे, सो व्हाई नॉट टू एंजॉय योर लास्ट डे। मतलब टेक कंसीडर योर डे एज अ लास्ट डे। मैं वो कह रहा हूँ मजा आएगा, जी के देखो। ये लोग देखते हैं कि हंस कैसे खुश रहता है, ऐसे खुश रहता है। आप तो लूजिंग एवरीथिंग फ्रॉम द लाइफ। खुश इसलिए क्योंकि होप नहीं है। अगर मैं होप रखूंगा तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तो मेरे लिए होप यही है कि आज लास्ट डे, आई हैव टू एंजॉय दिस नाइट। और जब सुबह उठता हूँ फिर मैं थैंक यू करता हूँ रब का कि रब थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अनदर डे। अब आज का दिन भी अच्छा जीना और इसको खुश मिजाज बनाना है। दिस आई एम सिटिंग ओवर हियर नेक्स्ट टू डिम्पल राइट नाउ एंड गिविंग माय लाइफ लर्निंग एंड ऑल। वेरी नाइस टू हियर दैट। सर्वर, हमने ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आपकी पूरी जिंदगी का चिट्ठा खोला है।
है ना इंडस्ट्री में सर्वर के ऊपर क्या क्या चीजें आती है, सर्वर को क्या क्या बोला जाता है, मतलब एनीथिंग जो भी उनके मुंह से निकल सकता है ऑलमोस्ट हम चीजों पे टिप्पणी कर रहे हैं। बट हमारी इंडस्ट्री में एक सबसे प्यारी चीज होती है दोस्ती। या तो दोस्ती बहुत अत की होगी और या फिर यहाँ धोखाधड़ी होगी बहुत ज्यादा। एक होते हैं जो दोस्त बन के आपके कंधे में बंदूक चला रहे होते हैं, एक हमारी इंडस्ट्री में होते हैं जो यारों के यार होते हैं। तो आपके साथ सबसे प्यारी और सबसे बुरी चीज क्या हुई है अब तक? सी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले डिम्पल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, और वो ट्रस्ट ही के टूटे ना, ठीक है ना। तो कई बार टूटा है और बड़े क्लोज दोस्तों से टूटा है, एंड ये मेरी वीकनेस भी है, मेरी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि जब धोखा मिलता है तो मैं वो रिपीट नहीं करता, ठीक है ना। तो मुझे वो एक लर्निंग देके जाता है। तो धोखा मुझे बड़े लोगों से मिला, मतलब आप कहोगे कि हर वो इंसान से मिला जिस पे ट्रस्ट किया। मैं नहीं देता नहीं सी नॉट अबाउट यू, मतलब बिजनेस वाइज अगर मैं बात करूँ, रिलेशन वाइज मैं बिलीव करूँ तो हर चीज में, ठीक है ना, बट उससे सीखे हैं। सो वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम गुरमीत सिंह ओबरॉय, हु इज माय लाइक फादर फॉर मी, कि मैं गलती करूंगा तो मैं गलती रिपीट नहीं करूंगा। गलती होना बाउंड टू हैपन है, बिकॉज काम हो रहा है तो गलती हो रही है, गलती नहीं हो रही तो मतलब काम नहीं हो रहा है। गलती होगी जरूर होगी, रिपीट ही होनी चाहिए, वो आपकी रनिंग है। वही मैंने सीखा है अपने 15 साल के करियर में, कि हर तरह के लोग आए, हर तरह की जिम्मेदारियां, हर तरह के लोग, उन लोगों ने धोखा दी जिसको आप सोच भी नहीं सकते। आपने इन्हीं हाथों से उसको खाना खिलाया, उन्हीं हाथों को काट के कहते हैं ये इनको कभी की जरूरत ही नहीं थी इनकी, वो तो मैं खुद भी खा सकता था। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड चलती गाड़ी है। ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ है, वो लिखा है ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ बैठा ना वो सब कुछ देख रहा है, सब देख रहे हैं, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ सब नोट हो रहा है, सब नोट हो रहे हैं, लाइफस्टाइल देख रहा है, काम देख रहा है, किरदार देख रहा है, मेहनत 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 मेरी रहमत होती है, सही रहमत तो दे ही रहे ਨਹੀਂ, ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਸਰਕਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਗੈਂਗ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ? ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਮਤ ਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। हाँ यार सी मैं अगर हिम्मत सर की गल करा तो when I was a hotelier, so you know the first name which I heard about, so Himmat sir, Himmat Anand naam is someone, you know, who is my yaar, who is my father, who is my brother. दुग्गल साहब ये ही हैं, यार, फ्रेंड, फादर, ब्रदर, सारे फिगर ने, बिकॉज यू नो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। यू नो मैं कहूँगा कि मैं यार ते कहना बहुत ਵੱਡਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਫॉर ਹਿੰਮਤ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਬੜੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਮਨੀਸ਼ ਦੂਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਸੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲ। ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾਫੀਆ ਮੰਡੀਰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਗੈਂਗ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡ ਟੂ ਜੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਮੰਡੀਰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੰਡੀਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਦਾ ਖੁਸ਼ ਮਿਲੀਦਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਆਰ ਟਾਈਮ। ਮਤਲਬ ਮੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ। ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ, ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਸਹੀ, that's something you have to earn, and which I've earned, and I'm very blessed to have people like such in my life. ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ 3-4 ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਮੈਨੇ ਕਈ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਆਈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮੀ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਬਲੈਸਡ। ਯੂ ਆਰ ਯੂ نو ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੋਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਂਗ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਯੂ نو ਐਵਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ what to say ਜੋਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, TCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵਧੀਆ, ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਯੂ نو ਦੇ ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਪੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਟ ਪੀਪਲ ਨਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਏ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਅੱਛੇ ਹੈ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਡਿੰਪਲ Main. टू मीट नेटवर्किंग और कोई नेटवर्किंग हो रही है चंगी नेटवर्किंग हो रही है आई फील एवरी एसोसिएशन इज द बेस्ट एसोसिएशन बेसिकली लोग एडमिन्स ਨੂੰ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ दे शुड डू बैक टू बैक नेटवर्किंग एग्जैक्टली बेसिकली लोगों का ये क्वेश्चन होता है हमारी इंडस्ट्री में कि एसोसिएशंस पार्टीज इन सब में लोग सिर्फ पार्टी फन के लिए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं इज इट फ्रूटफुल फॉर अस? देखो फिर मैं अभी डिंपल दैट्स अगेन पर्सन टू पर्सन मेरा होता है कि मुझे नेटवर्किंग करनी है सो मैं होटल इंडस्ट्री के बाहर भी ट्रैवल ट्रेड के बाहर भी कई एसोसिएशंस का पार्ट हूँ जहाँ पे हम नेटवर्किंग करते हैं ठीक है ना तो बिजनेस वहीं से आता है तो मैं तो छोड़ता नहीं ठीक है ना आई ट्राई टू फाइंड आउट द राइट पर्सन फॉर मी मैं उसको पोच करता हूँ देन आई कन्वर्ट इनटू द बिजनेस तो मेरा ऑब्जेक्टिव हुआ है अब वो डिपेंड करता है आपको कि आपको जाके सिर्फ मिलना है तो आई थिंक फिर वो तो आप किसी भी इवेंट में मिल सकते हो साथ वेस्टेज ऑफ मनी योर टाइम मल्टीपल एसोसिएशंस का आई डोंट थिंक जरूरत भी है ट्रैवल ट्रेड को आई थिंक देयर शुड बी वन एसोसिएशन और टू एसोसिएशन व्हिच कैन गैदर पीपल ऑल टुगेदर वरना साथ ही एटीएम तो है ही है ट्रू तो अब हमने बात एग्जीबिशंस की करी है तो आपको क्या लगता है एग्जीबिशंस कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में? देखो अगर तो फ्रूटफुल है अगेन आपकी उसी क्वेश्चन पे है आपका एजेंडा क्लियर है तो बेस्ट है पर अब ना मेरे हिसाब से जितने ये बड़े बड़े इवेंट जितने बड़े हुए जा रहे हैं ना उनका इम्पोर्टेंस खत्म हो गया है नो इफ आई से इम्पोर्टेंस आई टेल यू आप एक 3 दिन का इवेंट करते हो उस पे आपने मल्टीपल स्टॉल्स लगाती है आप प्रोडक्टिव टाइम कितना दे पा रहे हो पर्टिकुलर को सो अभी जैसे जीपीएस चल रहा है टीटीजी चल रहा है मुझे लगता है ये बेस्ट है क्यों बेस्ट है वन ऑन वन चल रहा है ठीक है ना आप सामने सामने बैठते हो आपके पास लिमिटेड क्लाइंट आना है लिमिटेड सप्लायर आना है तो आपकी फेस टू फेस बात होगी खत्म हो जाएगा अब जहाँ पे आपको एक तो उसका मैप लेके घूमो अब वो पैसा मैं कहूँगा कि कैश का हो गया ठीक है ना आप मल्टीपल कंपनीज को ले आओ एक अम्ब्रेला के नीचे खड़े कर दो पर आप उसमें अब देखो मैं किसी का नाम एक इवेंट है हमारा ये यशोभूमि में हुआ था नाम नहीं होना चाहिए पर नेटवर्क नहीं था वहाँ पे विदाउट नेटवर्क हाउ कैन यू डू अ नेटवर्किंग बंदे को यही नहीं पता उसका स्टॉल किधर लगा हुआ है तो वो मेरे लिए वेस्टेज बनी है नहीं इवन एंड यूजर अपने सप्लायर और कैंडिडेट को नहीं मिल पा रहा तो मेरे लिए वो बेसलेस है इस पे मैं खुद टिप्पणी करूंगी इवन वी पुट दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम एंड इस बार हमें ये उन्होंने बोला है कि ये सब चीजों को ठीक किया जाएगा वी डिड आवर जॉब ऐसा लेट्स सी देखो अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया मैं फिर एक बात बोलूंगा आपका ऑब्जेक्टिव तो मेन वहाँ पे बिजनेस जनरेट करना है आपका क्लाइंट गेट पे पहुंचा और वो आपको फोन कर रहा है तेरा स्टॉल क्या बाहर तो नेटवर्क है और जब अंदर आके फोन कर रहे हैं नेटवर्क नहीं है तो वो मेरे लिए फिर काम की चीज नहीं रही तो जैसे मैंने नाम लिया जीपीएस का टीटीसी दे आर नॉट पेइंग मी मनी बट आई पर्सनली विजिटेड देयर द इवेंट्स एंड ऑल मुझे बहुत बिजनेस आया भी है मैंने आई वाज इन अमृतसर वी डिड जीपीएस सो मच टीटीसी भाई बहुत किया हमने और हमने बिजनेस जनरेट भी किया क्योंकि एक तो आप रीचेबल हो जब आप रीच से दूर हो जाओ ना आप जब रीच से दूर हो जाओ ना फिर वहाँ पे डिस्कनेक्ट आ जाता है 1-to-1 मीटिंग करने का सफिशिएंट जब तक आप फोन पे हो तब तक आप कनेक्टेड हो जब हाँ आप रेंज से बाहर गए यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड कहते हैं ना वही चीज है वहाँ पे भी सर्वर वैसे गल्ला का बहुत ने साडे बहुत है जी पर मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि यू आर डूइंग विद 7 month old kid अभी इस पूरे पॉडकास्ट में मैंने देखा कितना डिफिकल्ट है तेरे लिए पॉडकास्ट करना भी और बेटे को हैंडल करना भी ये लंबा खिंचा भी इसलिए है क्योंकि मेरे हिसाब से 3-4 बार तोड़ के गई है तो हैट्स ऑफ टू सीरियसली बीइंग अ मदर डू रियली गुड जो ट्रैवल ट्रेड के अंदर एक पॉडकास्ट चैनल लेके आना सो दैट पीपल कैन कीप देयर वर्ड्स तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट पता नहीं लाइक माय विशेस आर विद यू एंड योर टीम इज आल्सो वेरी अमेजिंग हैट्स ऑफ अ ब्यूटीफुल स्टूडियो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर एंड ब्यूटीफul people I must say God bless you people from my side ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ but thank you नहीं it's my honor that to be part of your podcast and see I love to see more people from the industry absolutely and I want कि you should ask such kind of a question which you asked from me कि event कैसे होने चाहिए और कभी आपको उन बड़ी associations के बंदे आए जो event कराते हैं you should discuss more about such kind of feedback and all absolutely thank you so much and this is it for today thank you and keep subscribe the channel and don't forget to see this podcast